So Sachin, why did you decide to come into software testing only? So people who want to choose testing as a career, first of all, go ahead and choose it. It's a beautiful career. तो मैं यही जानना चाहती हूँ कि जैसे if I am a good coder, तो should I still think of coming into this field, या वो exactly किस तरीके का mindset या background होना चाहिए when I should decide? If you want to do a restricted, focused, small effort level job, तो programmer बन जाओ. If you want to work on freedom, open-ended and more responsible job लेना है तो टेस्टर बन जाओ. चाहिए कि who is a test engineer? What do they actually do? वो जब प्याज के छिलकों को छील के आप प्याज ढूंढते हो, बस टेस्ट इंजीनियर का काम यही होगा कि वो टेस्टिंग के एक एक लेयर को हटा हटा के पता करें नहीं ये टेस्ट इंजीनियर है. क्या स्किल सेट एंड टूल्स डेवलप करने हैं, सीखना है टू कम इनटू दिस डोमेन? स्किल सेट में टेस्ट डिजाइन टेक्निक्स बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए. देयर आर मल्टीपल एंड यू शुड नो ऑल ऑफ देम प्रोवाइडेड दैट दे आर नीडफुल इन योर करंट वर्क. So how important is process in this field? Scrum is a process and for that you have a Scrum master जो आपकी प्रोसेस को सेफगार्ड करेगा. तो आप ही कह रहे हो कि प्रोसेस इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपने एक और बंदा बना दिया है जो आपके प्रोसेस का ध्यान रखता है. क्यों? क्योंकि प्रोसेस इंपॉर्टेंट है. तो आप हमें एक रोड मैप बता दीजिए हाउ टू स्टार्ट. कोई और आके आपकी इंडस्ट्री को, कोई और आके आपके स्किल्स को, आपके जॉब को अच्छा नहीं बोलेगा. Hi everyone, my name is Shivangi Tiwari and welcome back to yet another episode of a podcast. आज की पॉडकास्ट में हमारे साथ सचिन है. He has 12 years of software testing experience and right now he is working with Adidas from last 2 years. So if you are someone जिसको software testing में interest है, if you are someone who wants to pursue software testing as a career, so आज की पॉडकास्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है क्योंकि हम एक एक चीज़ डिस्कस करेंगे कि आपको स्टार्ट कैसे करना है, कि क्या क्या आपको रिसोर्सेज फॉलो करने हैं, क्या क्या चीज़ें आपको सीखनी है, देन इंटरव्यू प्रोसेस क्या होते हैं, सब कुछ हम एंड टू एंड डिटेल में समझेंगे आज की पॉडकास्ट में. सो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन बिफोर वी स्टार्ट द पॉडकास्ट. एंड अगर आपको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में इंटरेस्ट है तो पूरी पॉडकास्ट अच्छे से सुनना आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है. नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट द पॉडकास्ट. हाय सचिन, वार्म वेलकम टू यू ऑन माई चैनल. कैसे हैं आप? हाय शिवांगी, मैं बढ़िया हूँ. आप कैसे हो? मैं भी बहुत बढ़िया. सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन माई चैनल. एंड अब फटाफट से आप थोड़ा सा अपने बारे में हम सबको बता दीजिए बिफोर वी स्टार्ट आस्किंग द क्वेश्चंस एंड आंसर्स. वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई हैव समथिंग इंपॉर्टेंट टू शेयर विथ यू रिलेटेड टू फाइनेंस and investments. So do you know what sets successful finance professionals apart? So they don't just learn, they master the industry relevant skills that make them stand out of the crowd. Finance and investment is one of the most lucrative industries with high paying jobs, career growth and immense career opportunities. But the biggest challenge is mastering financial modeling, which is the backbone of every finance role. That's where PW Skills and Deloitte bring you a comprehensive financial modeling course that is going to make you job ready in just 3 months. With this course, you're going to learn from the Deloitte India experts, master financial modeling and valuation, and gain hands-on experience with the help of practical case studies. After the course completion, you're going to receive an industry recognized certification from Deloitte as well as PW Skills. So if you are a student or a working professional or someone who wants to come into the finance industry, then this course is going to be perfect for you. You will gain industry relevant skills, after which you will be able to crack roles like financial analyst, audit associate and investment analyst. एंड हाँ, एक चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गई, मुझे जस्ट याद आया कि PW मनाने जा रहा है अपना 4th विश्वास दिवस, जहाँ पर ये एक्सक्लूसिव डिस्काउंट्स, ऑफर्स और कूपन्स दे रहे हैं. चेक आउट द वेबसाइट एंड रजिस्टर इन द लैंडिंग पेज. लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ. यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू बिल्ड अ करियर इन टू फाइनेंस एंड गेट अ हाई पेइंग जॉब. Enroll now and celebrate Vishwas Divas with us. Now let's move on in the video. Yeah, so I am a software testing engineer and I am learning software testing since 12 years now. काम करता हूँ as a tester in different companies. Currently I am working with Adidas. यहाँ पे we are working as part of SDET team. So it's like एक डिकेड से ज़्यादा का एक्सपीरियंस हो गया इन दिस फील्ड एंड आई ऑलवेज सी दैट देर आर न्यू थिंग्स टू लर्न एंड दैट्स व्हाट आई हैव बीन डूइंग सो फार. There are multiple opportunities that I got throughout my career to work in different domain and different technologies with different people. और यही सब करते सीखते हुए मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ. एंड उसी के साथ साथ मैं लोगों को कनेक्ट करके उन्हें पढ़ाता हूँ, उनसे पढ़ता हूँ. मैं काफ़ी मीटअप्स एंड कॉन्फ्रेंसेस में इंटरेस्ट रखता हूँ और इन सब चीज़ों से मुझे ऐसा लगता है कि एज ए नॉट ओनली एज ए टेस्टर बट एज ए सॉफ्टवेयर
delivery person. I get a lot of things to learn, and that's what I do. Yeah. या ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, मतलब शेयरिंग नॉलेज इज़ ऑलवेज हेल्पफुल बिकॉज वी नेवर नो कि हम कब किस तरीके से किसको हेल्प कर सकें. तो सचिन, व्हाई डिड यू डिसाइड टू कम इनटू सॉफ्टवेयर टेस्टिंग ओनली, मतलब इसको आपने एज अ करियर क्यों चूज़ किया? Why did I decide? See, Yeah. डिसीजन का तो कोई पॉइंट नहीं होता. व्हेन यू स्टार्ट योर करियर, आई वांटेड टू कम इनटू सम फील्ड विच इज रिलेटेड टू क्वालिटी. रीजन बीइंग, और मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर इन टेस्टिंग आर जनरली नॉट डिसाइडेड टेस्टर्स. वो किसी और एक्टिविटी से या किसी और अपॉर्चुनिटी से करते हुए वो टेस्टिंग में लैंड करते हैं, देन दे स्टे एज ए टेस्टर. बट मेरे केस में ये था कि आई वॉज नोइंग अबाउट दिस फील्ड थ्रू माई कॉलेज करियर कॉर्नर्स, और वहाँ से मुझे ये पता था कि देर इज़ दिस काइंड ऑफ फील्ड अवेलेबल इन द मार्केट. और मुझे स्टार्टिंग से लगता था कि आई शुड गो समवेयर इन दिस. और उसका मैं एकदम जेन्युइन आंसर आपको बताता हूँ. आई वॉज इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन ब्रांच. ठीक है, तो इट्स नॉट अ कोर ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल, एंड नॉट इवन अ कोर ब्रांच ऑफ कंप्यूटर्स. तो it's a place where you get opportunity to learn both of these things, and that's why you get chance. आप डिसाइड कर सकते हो कि आप किस डायरेक्शन में जा सकते हो. सो आई ऑलवेज सी कि कॉलेज में बहुत सारे लोग कंप्यूटर्स की, सॉफ्टवेयर की, और यही इंडस्ट्री आगे जाएगी इसकी बात करते थे. और मुझे लगता था कि इसी इंडस्ट्री में अगर आपको कहीं ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले जहाँ पे आपके एक स्पेसिफिक स्किल सेट, फॉर एग्जांपल कोडिंग की मैं बात करता हूँ, उसको बहुत ज़्यादा ध्यान में ना रखते हुए आपको कहीं ऐसा कि आप अपना वैल्यू ऐड कर सकते हो थ्रू द स्किल्स दैट यू ऑलरेडी हैव, लाइक एवरीबडी एज ए ह्यूमन हैव. इफ अगर उसको कहीं एडवांटेज मिलता है तो वैसी फील्ड और पता की गई. टू बी ऑनेस्ट, जब मैंने स्टार्ट किया था तब इतना ये लर्निंग प्लेटफॉर्म्स नहीं थे, सोशल मीडिया, ऑल दोज थिंग्स, दिस वर नॉट देयर. सो वी वर नॉट एबल टू get a lot of information, and I think that was blessing at that time, to be honest. बहुत सारी information होना is a problem. That's called problem of plenty. और इस वजह से भी लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम होती है आज के टाइम पे टू डिसाइड. सो मैं तो चाहता हूँ कि मैं ये बताऊँ कि मैंने क्यों डिसाइड किया से ज़्यादा ज़रूरी है अब लोगों को क्यों डिसाइड करना चाहिए या फिर कैसे डिसाइड करना चाहिए, राइट? सो आई एम जस्ट टर्निंग योर क्वेश्चन इन डिफरेंट डायरेक्शन. आई होप यू डोंट माइंड. Yeah, sure. Please Yeah. go ahead. So, एक हफ्ते पहले मैं अपने कजिन ब्रदर से बात कर रहा था. वो DU में पढ़ता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में. दिस कॉलेज नेम एज हिंदूजा कॉलेज, सॉरी हंसराज कॉलेज, सॉरी, उसमें वो पढ़ता है. और वो मुझे बता रहा कि देर आर सम कोर्सेज जो यूनिवर्सिटी की तरफ से स्टार्ट हुए, विच इज़ सैक एंड वैक, ऐसा कुछ था उसका, वैल्यू एडेड कोर्स, स्किल एनहांसमेंट कोर्स. ऐसे कोर्सेज अगर आपके कॉलेज में हो रहे हैं तो पहली चीज़ तो आप उनमें देखो कि आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग को वहाँ से समझ सकते हो, क्योंकि डेफिनेटली वहाँ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के बारे में बात हो रही है. अगर कॉलेजेस में नहीं हो रहे, सो आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू स्टार्ट हैविंग सच काइंड ऑफ फैसिलिटीज इन कॉलेजेस via your academics, or there are people like who call themselves influencer in the field of software testing. They should somehow get into this zone कि वो लोगों को प्रमोट करें, कॉलेजेस को ये कहें कि आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एज अ सब्जेक्ट को आप बाय एनी मीन यू कैन जस्ट add value in the curriculum so that you can get opportunity to learn, think, understand and even realize कि एक बहुत बढ़िया, बेहतरीन सी, बहुत अच्छी सी फील्ड है. तो ये कॉलेजेस में होना चाहिए. और दूसरी चीज़ की, अगर किसी को लगता है कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कुछ है ही नहीं, है बस बहुत लोग ऐसा कहते हैं, ठीक है, कि एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक बहुत बढ़िया फील्ड है और एक होती है सॉफ्टवेयर की डिलीवरी, डेवऑप्स एंड ऑल. उनके बीच में कहीं तो भी एक सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एक सेगमेंट है, ऐसा लोगों की धारणा है. सो और मे भी हो सकता है, ठीक है, किसी कंपनीज में ये सिनेरियो बन भी सकता है. तो इट डिपेंड्स कि आप किस कल्चर में काम कर रहे हो. जैसे मैंने जिन कंपनियों में काम किया है उनमें से कुछ तो कोर टेस्टिंग कंपनीज ही थी जहाँ पे हम टेस्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते थे, और कुछ कंपनीज जो टेस्टिंग को बहुत ज़्यादा वैल्यू देती है. रीज़न इज आप अपने कस्टमर को बहुत वैल्यू देते हो, इसीलिए उनके लिए क्वालिटी को डिलीवर करना इंपॉर्टेंट रखते हो, और इसीलिए आपके पास टेस्टिंग एज अ प्रैक्टिस बहुत सीरियस एक चीज़ है. सो पीपल हु वांट टू चूज
टेस्टिंग एज ए करियर, फर्स्ट ऑफ ऑल गो हैड एंड चूज, इट्स अ ब्यूटीफुल करियर, बहुत ही सॉर्टेड करियर लाइन है। और मैं मुझे लगता है मैं 4th जनरेशन का टेस्टर हूँ। आई मीन जो मेरी स्टडी है वो कहती है कि 1980s में सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एज ए करियर स्टार्ट हुआ था फुल फ्लेजेड। तो एक एक जनरेशन को अगर आप 10-10 साल में समझते हो, और वी हैव पीपल हु आर रिप्रेजेंटेटिंग जनरेशंस, सो आई एम काइंड ऑफ 4th जनरेशन, और अब जो नई आएगी उसे हम 5th जनरेशन ऑफ टेस्टिंग कह सकते हैं। तो मेरे पास देर आर लॉट ऑफ एग्जाम्पल टू सी पीपल आर डूइंग ग्रेट, एंड आपके पास तो जो नए लोग ज्वाइन करेंगे उनके पास तो और भी एग्जाम्पल्स हैं टू सी हाउ पीपल आर मेकिंग इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, ऑन businesses, on humanity by being in this profession. I know मैंने थोड़ा लंबा खींच लिया, but this is really important to understand why testing. या आई डेफिनेटली अंडरस्टैंड, और मैं खुद वो माइंडसेट समझ सकती हूँ। जैसे कि आपने बोला कि स्टार्टिंग में व्हेन यू वर इन योर कॉलेज बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं थी, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, बट देन यू डिसाइडेड फ्रॉम द बिगिनिंग, मैंने आपका लिंक्डइन देखा, यू आर इन दिस फील्ड फ्रॉम द बिगिनिंग। तो मैं यही जानना चाहती हूँ कि जैसे इफ़ आई एम अ गुड कोडर, तो शुड आई स्टिल थिंक ऑफ कमिंग इन टू दिस फील्ड, या वो एग्जैक्टली किस तरीके का माइंडसेट या बैकग्राउंड होना चाहिए व्हेन आई शुड डिसाइड कि नहीं आई विल परस्यू सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एज अ करियर, या स्टार्टिंग फ्रॉम योर कॉलेज? या करेक्ट। सो सी, कोडर होना टेस्टिंग के लिए भी मैंडेटरी ही है। आप हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि कोडर है तो प्रोग्रामिंग या फिर डेवलपमेंट ही फील्ड है। कोडिंग जो है इट्स कोर ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, और टेस्टिंग उसी का एक पार्ट है, राइट? सो इफ यू आर गुड एट कोडिंग and can have a mindset of testing, I mean testing means you have to try a lot of things. When I say programming, it's like you have a syntax and you have a compiler. आप उसके बाहर कुछ कर ही नहीं सकते हो। गलत सिंटेक्स करोगे तो कंपाइलर आपको बोल देगा गलत लिख रहे हो, कुछ गलत ट्राई करना चाहोगे तो टेस्टिंग ऑन द अदर साइड, आप नेगेटिव सिनेरियो ट्राई करते जाओ, आप कुछ भी कर सकते हो। Because testing is a field where you not only make sure that system should work as it should, instead of that, along with that, I mean, you should also make sure कि वो क्या नहीं करना चाहिए। तो वो क्या नहीं करना चाहिए के लिए आपको बहुत सारे सिनेरियोज, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस, बहुत सारी केसेस, कंडीशंस, ये सब बनाने पड़ते हैं। तो अगर आप चाहते हो नाउ अब मैं जो बोल रहा हूँ वो बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल हो सकता है स्टेटमेंट, बट द पॉइंट इज इफ यू वांट टू डू a restricted, focused, small effort level job, तो प्रोग्रामर बन जाओ। If you want to work on freedom, open-ended and more responsible job लेना है तो टेस्टर बन जाओ। स्किल सेट, कोर स्किल सेट आपका सेम है, कोडिंग ही चाहिए, ओपन माइंडफुलनेस चाहिए, क्यूरोसिटी चाहिए, कम्युनिकेशन चाहिए, एम्पैथी चाहिए विथ योर कस्टमर, अंडरस्टैंडिंग चाहिए टू द प्रॉब्लम, क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए। दिस इज सेम फॉर डेवलपर एंड टेस्टर। द ओनली थिंग इज दे आर मोर फोकस्ड, मोर रेस्ट्रिक्टेड, एंड वी आर मोर ओपन एंड हैव मोर फ्रीडम इफ वी आर अ गुड टेस्टर। That makes sense. Yeah. So अभी थोड़ा elaborate करके बताइए कि who is a test engineer? What do they actually do? Okay. So इसके छोटे आंसर भी है और बड़े आंसर भी है। आई मीन टेस्ट इंजीनियर का अभी हो क्या गया है ना शिवांगी, वो जब प्याज के छिलकों को छील के आप प्याज ढूंढते हो, बस टेस्ट इंजीनियर का काम यही होगा कि वो टेस्टिंग के एक एक लेयर्स को हटा हटा के पता करे, नहीं ये टेस्ट इंजीनियर है, नहीं ये मैनुअल टेस्टर है, नहीं ये ऑटोमेशन है टेस्टर है, ये एसडेट प्रोफाइल है, ये तो क्यूए है क्वालिटी एश्योरेंस, ये क्यूई है क्वालिटी इंजीनियरिंग, यू नो, अलग अलग छिलके उतार के आप उस प्याज को ढूंढ रहे। द विजडम इज टू अंडरस्टैंड कि प्याज छिलका ही है। आपको ये समझना है कि एवरी सिंगल थिंग दैट यू आर डिवाइडिंग इनटू डिफरेंट कैटेगरीज टू फाइंड आउट व्हाट इज दैट फील्ड या व्हाट इज दैट कोर स्किल सेट की टेस्ट इंजीनियर क्या है, ये सब कुछ टेस्ट इंजीनियर ही है। एवरीबडी इन दिस वर्ल्ड इज एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इज टेस्ट इंजीनियर। इंजीनियर एक डिग्री है, तो अगर आपने वो बीटेक किया कुछ किया तो आप टेस्ट इंजीनियर कहलाते हो, पर टेस्टिंग ह्यूमन का कोर नेचर है, बस हमें उसके लिए पैसा मिलता है।
तो टेस्ट इंजीनियर, लेकिन ये हो गया इसका एक साइकोलॉजिकल। यार मैं कहीं बात करता हूँ तो लोग बोलते हैं ये घुमाता है या बातों को बहुत फिलोसॉफिकल वे में बताता है, तो इसलिए मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड ही बताता हूँ जो लोग बिल्कुल स्ट्रेट सुनना चाहते हैं। प्रैक्टिस या फिर what you can say, a position where people are developing something in order to solve some business problem. You as a test engineer is validating or helping them to understand that whatever they are doing is appropriate to the line that was promised as delivery. इसको चेक करने का काम टेस्टर करता है। और टेस्टिंग की बहुत सारी डेफिनेशन है। द रियलिटी इज कि जो चीज बड़ी सिंपल होती है उसको लोग अपने अपने तरीके से बना लेते हैं कि ये होता है। तो मैंने भी टेस्टिंग की काफी डेफिनेशन पढ़ी है, बट इन रिसेंट डेज द डेफिनेशन विच आई एम प्रमोटिंग सो मच इज, एंड बिकॉज इट्स डेफिनेशन इट शुड बी डेफिनाइट। सो आपको लगेगा कि मैं रटा हुआ बोल रहा हूँ, मैं एक्चुअली में रटा हुआ ही बोल रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि लोग रटे इन चीजों को, बिकॉज इट्स डेफिनेशन। एंड द डेफिनेशन विच आई लाइक इज टेस्टिंग इज अ वेल डिजाइंड, well executed experiment that can leads to coherent of data. And क्योंकि मैं रटा हुआ बोल रहा हूँ, so give me that moment because I do not want any single word to go here and there. So that can leads to a coherent of data which produces the meaningful insights, and that allow us to possibility of making trustworthy conclusions. That's the definition of testing. And the words are can, allows, may, possibilities. But importance is trustworthy conclusion. And what is even more important is it's a well designed, well executed experiment. So जो लोग टेस्ट केस लिख के एग्जीक्यूट करने को टेस्टिंग समझते हैं वो प्रॉब्लम में है। देखो हुआ क्या है, आपके ना कोर्सेज चल गए टेस्टिंग के, इंस्टीट्यूशन बन गए, है ना, उन्होंने डराया। वो एक बहुत बढ़िया लाइन है, मुझे उसकी मतलब उसका जो मीनिंग है वो ये है कि पहले प्यास शिद्दत से बांटी जाएगी, फिर एक एक बूंद बेची जाएगी। इस तरीके से टेस्टिंग बनाई गई है कि पहले लोगों को डराया गया है, पहले लोगों को ये बताया गया कि बहुत इजी नहीं है, बहुत ये है, नौकरी है, पैसा देगा कोई तो डिफिकल्ट काम ही कराएगा, ऐसे ऐसे करके पढ़ाया जा रहा है बहुत सारा। और इवेंचुअली लेके कहा जाए कि आपको डिफेक्ट मैनेजमेंट सीखना है, टेस्ट मैनेजमेंट सीखना है, टेस्ट केस लिखने हैं, एग्जीक्यूट करना है, और अच्छा बन रहे हो ऑटोमेशन करना है, एआई करना है, डेवऑप्स के कुछ टूल है, एंड विल डिस्कस अबाउट दीज थिंग्स, दीज आर इंपॉर्टेंट, बट देन द व्हाट इज इसेंशियल एंड व्हाट इज इंपॉर्टेंट, दोनों में डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। खैर मैं इस बात पे आ रहा था कि बहुत प्लेन वे में जो टेस्टिंग है वो टेस्टिंग एक्टिविटी हो सकती है, पर टेस्टिंग की अंडरस्टैंडिंग जो है वो वही है, दैट यू हैव टू हेल्प योर बिजनेस टू जनरेट सम इनसाइट सो दैट दे कैन मेक ट्रस्टवर्दी कंक्लूजन ऑफ deciding things on basis of the data that you are generating. That's what software testing is. Difficult, no? No, not at all. Absolutely correct. So, अभी थोड़ा डोमेन्स भी अच्छे से जान लेते हैं कि कौन कौन से रोल्स या सब डोमेन्स होते हैं इनटू टेस्टिंग ओनली। सब डोमेन्स आई डोंट नो इसको सब डोमेन बोलेंगे या नहीं, पर जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे रोल्स आ गए हैं अलग अलग, और टेस्टिंग मैं आपको एक और भी चीज बताता हूँ टेस्टिंग के बारे में। एक्सपर्ट वर्ड जो लिखते हैं बहुत सारे लोग, टेस्ट एक्सपर्ट, मैंने मेरी लाइफ में कोई भी टेस्ट एक्सपर्ट नहीं देखा, और मैंने बहुत सारे टेस्टर्स फॉलो किए हैं, उनसे बात करता हूँ, जानता हूँ, सुन रहा हूँ रेगुलर। टेस्ट एक्सपर्ट टेस्टिंग एज ए इंडस्ट्री का कोई एक्सपर्ट नहीं हो सकता, क्योंकि टेस्टिंग एज ए इंडस्ट्री बहुत ज्यादा बड़ी है। आप स्पेशलिस्ट हो सकते हो टेस्टिंग के, और इसीलिए मैं सेगमेंट की बात करता हूँ, जो सेगमेंट मुझे पता है या मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा इंडस्ट्री में यूज हो रहे हैं, और उनमें भी मैं कुछ को छोड़ देता हूँ, क्योंकि हम सब कुछ नहीं कवर कर सकते, सब कुछ कवर भी नहीं करना चाहिए। राइट। सो मेरे हिसाब से एवरेज या फिर बहुत ही सेटल्ड टेस्टर के लिए 3 सब डोमेन्स अगर आप चाहो तो इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। वन इज योर फंडामेंटल ऑफ टेस्टिंग,
जिसको लोग कोर टेस्टिंग स्किल्स बोलते हैं, मैनुअल टेस्टिंग काफ़ी बोलते हैं लोग, विच इज़ अगेन नॉट रिकमेंडेड टर्म टू यूज़। दूसरा होता है आपका टेस्ट ऑटोमेशन, जहाँ पे आप इसी स्किल सेट को बहुत अच्छे से इफिशिएंटली इफेक्टिवली करना चाहते हो, एंड दैट्स व्हाई यू लर्न ऑटोमेशन। एंड थर्ड सब डोमेन मैं दूंगा नॉन फंक्शनल टेस्टिंग को, जिसमें बहुत सारी चीज़ आ सकती है। परफॉर्मेंस टेस्टिंग उसमें आती है, सिक्योरिटी आती है, यूजेबिलिटी आती है, देयर आर लॉट ऑफ ILT टेस्टिंग विच आर पार्ट ऑफ नॉन फंक्शनल। तो आप ये समझिए कि फंक्शनल टेस्टिंग along with automation, so it's like you need to know your core of software testing, you need to know how to automate things so that you can do efficiently, and you also need to know non-functional testing के tools and technologies and skills and all। तो ये मेन मेरे हिसाब से 3 सब डोमेन है। नाउ अगर कोई बोलता कि नहीं एक AI इन टेस्टिंग भी है, डेटा का तो ये बता ही नहीं रहे, API टेस्टिंग की तो बात ही नहीं कर रहे, ये भी तो सब डोमेन है, ये सब उसके अंदर ही सेगमेंट है उन सब डोमेन के ही। बट ओवरऑल अगर आपको किसी को एक बढ़िया टेस्टर या फिर फुल फ्लेजेड सॉफ्टवेयर टेस्टर बोलना है, जिसको लोग फुल स्टैक डेवलपर बोलते हैं, मैं उसे सॉफ्टवेयर टेस्टर अगर फुल स्टैक कहना चाहूँ तो उसे फंक्शनल एंड कोर ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग आनी चाहिए, ऑटोमेशन आना चाहिए और नॉन फंक्शनल आना चाहिए। नाउ एक और पॉइंट है, जैसे कि अगर आप वेब एप्लीकेशन के लिए कर रहे हो तो भी आपको यही 3 चीजें आनी चाहिए। मोबाइल के लिए कर रहे हो आपको यही 3 चीजें आनी चाहिए। अगर आप दोनों के लिए कर रहे हो तो आपका एक सेगमेंट बढ़ जाता है, विच इज मोबाइल टेस्टिंग अगेन। सो इट्स लाइक यू आर डूइंग फंक्शनल टेस्टिंग, कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑल ऑफ वेब, ऑटोमेटिंग द वेब, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग फॉर द वेब, एंड देन डूइंग ऑल दीज थिंग्स फॉर मोबाइल। सो दैट्स हाउ वो बढ़ता जाता है। गॉट इट। तो जैसे कि कोई प्रिपेयर कर रहा है तो इंडिविजुअल रोल्स के लिए भी प्रिपेयर कर सकता है, राइट? फुल फ्लेजेड तो कर ही सकता है डेफिनेटली, बट इंडिविजुअल रोल्स के लिए भी प्रिपेयर कर सकता है ना? मुझे लगता है कि अगेन मैं फिर थोड़ा सा अलग थॉट रखता हूँ कि जो लोग आप डिफाइन कैसे करते हो कि इंडिविजुअल लेवल पे कर रहा है या फिर ज्यादा कर रहा है। तो जो फ्रेशर होते हैं ना, जिनको हम बोलते हैं कि तुम सिर्फ इतना ही कर लो, एक्चुअली में जो फ्रेशर होता है उन्हें ज्यादा करना चाहिए। करना तो चाहिए, क्योंकि उनके पास टाइम है और उनके पास होने को कुछ नहीं है। सबसे ज्यादा मतलब डेंजरस लोग होते हैं बिगिनर्स, फ्रेशर्स, क्योंकि उनका माइंड एकदम जबरदस्त फ्रेश सा होता है और वो कुछ भी पढ़ सकते हैं और कितना भी पढ़ सकते हैं। हम आप YouTube पे बोल देते हैं कि इतना ही पढ़ो, बस पहला जॉब तो छोटा, बस इतना आ जाए, टेस्ट डिजाइनिंग टेक्निक्स पता चल जाए, इंटरव्यू दे दो, अंग्रेजी अच्छी बोल लोगे, हो जाएगा। तो मुझे लगता है वो उल्टा आना चाहिए कि पहले जो फ्रेशर बिगिनर कॉलेज वाले लोग हैं वो ज्यादा पढ़ें, बहुत कुछ पढ़ें, जितना हो सके उतना। फिर जैसे जैसे वो इंडस्ट्री में आए, अब उनको पता चल जाएगा कि यार मैंने हेल्थ केयर में 5 साल काम किया है, तो अब मैं उसके हिसाब से पढ़ूं। वो और 10 साल एक्सपीरियंस होगा तो उससे पता चल जाएगा कि मैंने स्पेसिफिक इस नॉन फंक्शनल टेस्टिंग, या मैं परफॉर्मेंस टेस्टर रहा हूं पिछले 7-8 साल से, तो मैं JMeter ही पढ़ूं, मैं गैटलिन, इन उसको मैं फिर से रेस्ट्रिक्ट करूं। इवेंचुअली मेरा एक्सपीरियंस जब 15 साल के ऊपर हो जाएगा तो मैं स्ट्रैटेजीज पे काम करने वाला बंदा हूँ, या मैं कंसल्टिंग ज्यादा अच्छी करता हूँ, या मैं मे बी टीचिंग अच्छी करता हूँ। तो आपका जो दायरा है पढ़ने का वो एक्सपीरियंस के साथ साथ कम होना चाहिए, ना कि उल्टा जो लोग बोलते हैं कि पहले फ्रेशर्स को कम पढ़ाओ, बिगिनर्स को कम पढ़ाओ, फिर धीरे धीरे अरे आएगा अपॉर्चुनिटी तो आप ज्यादा पढ़ लोगे, विच इज नॉट, फॉर मी इट इज नॉट द फैक्ट, टू बी ऑनेस्ट। ओके, अभी थोड़ा सैलरी वाला पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। टेस्टर्स को क्या डेवलपर्स के बराबर सैलरी मिलती है? ज्यादा मिलती है सच में? जनरली मतलब मैंने तो जो सुना है वो यही कि सेम ही ब्रैकेट होता है डेवलपर्स और टेस्टर्स का, सेम रेंज में ही मिलता है। सो लाइक बच्चों को बड़ी क्यूरियोसिटी होती है कि ये भी जानने की। हाँ, ये जरूरी है, क्योंकि बच्चों की क्यूरियोसिटी, इसीलिए क्वेश्चन भी जरूरी है। बट आप एक चीज देखो कि आप सैलरी जो है वो बहुत ज्यादा चीजों पे डिपेंड करती है। आप किस कंपनी में हो, वो कंपनी किस फेज में है, आप कब ज्वाइन कर रहे हो, आप किस प्रोजेक्ट में जा रहे हो, आपका स्किल सेट क्या है, आपका मतलब सेम ईयर ऑफ एक्सपीरियंस का एक टेस्टर, सेम ईयर ऑफ एक्सपीरियंस का एक डेवलपर, दोनों अगर 2 अलग अलग कंपनीज में काम कर रहे हैं, जो कंपनीज की परफॉर्मेंस अपने लेवल पे अलग है, तो उनकी सैलरी अलग होगी, राइट? लेकिन मार्केट में एक फिर भी एक एवरेज बैंड बना होता है कि इतने साल का एक्सपीरियंस हो तो इतना सैलरी मिलता है।
और वो मेरे हिसाब से सेम ही है, ठीक है, क्योंकि वी आर इंजीनियर. इट्स लाइक somebody is working in an IDE और जावा के साथ में कंपाइलर पे काम कर रहा है, एंड somebody is working in a different framework, different tool, but then again वो भी जावा के साथ कंपाइलर पे काम कर रहा है, ऑटोमेशन टेस्टर. सो बेसिकली इट्स लाइक हमारा जो कोर होता है, जैसे मैंने स्टार्ट भी यही किया था कि ऑल दी 7-8 स्किल विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट आर सेम फॉर टेस्टर्स एंड डेवलपर, एंड दैट्स व्हाई आई बिलीव कि सैलरीज सेम होनी चाहिए. लेकिन अगर आपका कोई टेस्टर है जो अपनी कंपनी बना के उस कंपनी का सीईओ बन गया है ना, मूल्या टेस्टिंग एक कंपनी है, उसके सीईओ है मिस्टर प्रदीप सौंदरराजन, वो टेस्टर है. अब उनकी सैलरी का आप अंदाजा लगाइए कितने डेवलपर से ज्यादा होगी, है ना. तो डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी में, किस रोल पे, किस टाइम पे हायर हो रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या स्किल सेट है, उसके हिसाब से आपकी सैलरी बढ़ सकती है. डेवलपर की सैलरी टेस्टर से ज्यादा है या टेस्टर की सैलरी कम है, ये गलत बात है. या फिर आप सही एक सिंपल सब्जी ना जब नीलामी में सुबह 4 बजे बिकती है तो रेट अलग होता है, जब मार्केट में बिकती तो अलग होता है, जब वो रेडी वाला गली में लेके घूमता है तो अलग होता है, वही चीज शाम को जब हो जाती है तो अलग हो जाता है. तो डिपेंड कर रहा है कि आप किस फेज में हो, किस कंपनी में हो, किस रेडी वाले के पास हो, तो आपका दाम सही लगे. सही बात है. That's how it is. हाँ, थोड़ा सा अभी स्किल सेट्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं. स्किल सेट और टूल, क्या स्किल सेट एंड टूल्स डेवलप करने हैं, सीखना है टू कम इनटू दिस डोमेन. सो स्किल सेट टेस्टिंग एज ए ओवरऑल इकोसिस्टम के लिए बहुत सारे हैं, बट हमें ये पता करना चाहिए कि कौन सी चीज कब इम्पॉर्टेंट है, और उसके लिए मतलब पॉडकास्ट में या किसी ऐसे सेशन में आप पूरा पढ़ा नहीं सकते हो, बता सकते हो, और मे बी लोगों को जगा सकते हो कि आप जो सोच रहे हो शायद ये नहीं है, या अगर आप यही सोच रहे हो तो मे बी वो सही है. सो स्किल सेट में फॉर एग्जांपल आपको टेस्ट डिजाइन टेक्निक्स बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए. देयर आर मल्टीपल एंड यू शुड नो ऑल ऑफ देम प्रोवाइडेड दैट दे आर नीडफुल इन योर करंट वर्क. टेस्ट डिजाइन टेक्निक्स आपको सो लेट्स ऐसा स्टार्ट करते हैं. ब्राउजर की टेस्टिंग आप करते हो, आपको ब्राउजर टेस्टिंग पता होनी चाहिए, उसके टूल्स पता होने चाहिए. ऑटोमेशन के लिए जैसे सेलेनियम एक टूल हो गया, साइप्रस है, प्लेराइट है, एंड ऑल दीज आर ऑल्टरनेटिव. मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं भैया सेलेनियम हो गया, प्लेराइट हो गया, साइप्रस कर लूं, तो ये गलत है. ये सब एक ही काम कर रहे हैं, ठीक है. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको कौन से वाले टूल की अंडरस्टैंडिंग लेनी है, ताकि आप उससे अपना वही काम कर सको जो सेलेनियम भी करता है, जो प्लेराइट भी करता है, जो साइप्रस भी करता है. ठीक है, इनकी टेक्नोलॉजीज अलग है, इनकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलग है, पर इनका कोर काम यही है दैट दे ऑटोमेट योर ब्राउजर इंटरैक्शंस दैट यू डू. सिमिलरली तो ब्राउजर के बाद आ गया आपका एपीआई. आपको एपीआई टेस्टिंग पता होनी चाहिए. एपीआई के बाद मे बी जैसे मैंने बोला मोबाइल ऑटोमेशन, तो मोबाइल ऑटोमेशन के लिए एपीएम बड़ा फेमस टूल है. अगर मोबाइल ऑटोमेशन सीखना है एज अ स्किल तो वो टूल पता होना चाहिए. गिटहब जो आपके सोर्स कोड मैनेजमेंट है, आई डोंट नो इफ पीपल आर यूजिंग एसवीएन. पहले जब मैंने स्टार्ट किया था तो हमारे डेवलपर्स यूज करते थे एंड वी स्टार्टेड यूजिंग दैट एज वेल. पर गिट बहुत फेमस है, बिट बकेट बहुत फेमस है फ्रॉम एटलेशियन, तो वो आपको पता होना चाहिए एज ए टूल बिकॉज यू आर कोडिंग नाउ एज एन ऑटोमेशन इंजीनियर. आपको CI/CD पता होना चाहिए, यू नो जेनकिंस है, एज्योर डेवऑप्स है, कहीं कहीं दोनों भी चल रहे हैं डिपेंडिंग अपॉन कि किस प्रोजेक्ट में आप हो. सो CI/CD पता होना चाहिए. आपको कंटेनराइजेशन पता होना चाहिए डॉकर का. आपको क्लाउड पता होना चाहिए, कोई भी, या AWS या Azure. यू नीड टू नो हाउ टू मैनेज योर टेस्ट केसेस. टेस्ट मैनेजमेंट टूल जीरा हो गया, ALM हो गया. डिफेक्ट मैनेजमेंट आपको पता होना चाहिए, बगासुरा है, बगजिला है, जीरा भी डिफेक्ट मैनेजमेंट यूज होता है. और इसके साथ साथ आपको सॉफ्ट स्किल्स बहुत अच्छे से आनी चाहिए. यू नीड टू नो दैट व्हाट आर द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट फॉर योर कस्टमर. एंड व्हेन आई से योर कस्टमर, इफ यू वांट टू हाईलाइट दिस पार्ट, इट इज रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड फॉर टेस्टर दैट for every phase, every artifact, and in that every artifact, everything that they are delivering, they have different customer for it. For example, अगर मैं कोई बग रिपोर्ट करता हूं तो उसका टाइटल जो मैं लिख रहा हूं बग का, उसका कस्टमर जो है वो मेरा प्रोडक्ट ओनर, प्रोडक्ट मैनेजर है. मतलब मेरा टाइटल पढ़ते से ही उसको ये पता हो जाना चाहिए कि ये बग कहाँ है और कितना सीवियर है, ताकि वो बताए कि इसकी सीवियरिटी आपने हाई रखी है, ये तो एक्चुअली क्रिटिकल है, या आपने इसे क्रिटिकल रखी है, नो ये तो मीडियम है, बिकॉज आई नो दिस इश्यूज. सो वो टाइटल का कस्टमर जो है वो आपका
प्रोजेक्ट मैनेजर या प्रोडक्ट ओनर है जो डिसाइड करता है विच वर्क नीड्स टू बी टेकन इन विच स्प्रिंट। आप जब स्टेप टू रिप्रोड्यूस ऐड कर रहे हो तो आपका डेवलपर आपका कस्टमर है, बिकॉज ही नीड टू अंडरस्टैंड वेयर इज द प्रॉब्लम, व्हाट इज द प्रॉब्लम। स्क्रीनशॉट अटैच कर रहे हो, वीडियो बना के डाल रहे हो, तो आपका कस्टमर डेवलपर है। जब आप रिलीज नोट बना रहे हो तो आपका कस्टमर मे बी क्लाइंट है या उसका क्लाइंट है। जब आप सबमिट कर रहे हो केसेस तो सपोर्ट स्टाफ आपका कस्टमर है। सो हर एक आर्टिफैक्ट के लिए हर एक डेडिकेटेड कस्टमर है, और आपको ये जानना है अपार्ट फ्रॉम दो स्किल्स विच आई टॉक्ड अबाउट कि आपके हर फेज के कस्टमर के लिए व्हाट इज इंपॉर्टेंट एंड हाउ यू कैन डिलीवर दैट वैल्यू टू दैट कस्टमर। तो जैसे मैंने स्टार्ट किया आपको कि ये मैं नहीं बता सकता कि कौन कौन सी ज्यादा चीजें, मतलब कितनी सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी चीजें टेस्टिंग के सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में आती है जो कि इंपॉर्टेंट है। पर मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एक बहुत छोटी सी कहानी है पर बहुत जरूरी है लोगों को समझना। होता क्या है, एक टीचर अपने क्लास में एक शीशे का जार लेके जाता है, ठीक है, बड़ा सा जार शीशे का खाली, और वो टेबल पे रख के, मे भी लोगों ने सुनी होगी ये कहानी, और अगर नहीं सुनी होगी तो सुन लो, सुनी होगी तो फिर से याद कर लो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टोरी या बहुत अच्छी सीख के साथ कोई कहानी है तो ये मुझे लगती है। तो वो जार ले जाता है, टेबल पे रखता है और बच्चों से पूछता है, स्टूडेंट से कि ये खाली है या भरा हुआ है। एंड एवरीबॉडी इज लाइक ये खाली है पूरा, क्योंकि वो शीशे का दिख रहा है खाली था। तो वो क्या करता है, उस जार के अंदर टेबल टेनिस के बॉल्स डालता है बहुत सारे, और वो इतने बॉल्स टेबल टेनिस के डालता है कि वो जार जो है वो पूरा फुल हो जाएगा। अब उस पर एक भी बॉल नहीं आ सकता। और वो बच्चों से पूछता है कि ये खाली है या भर गया। सो एवरीबॉडी इज लाइक ये भर गया सर, फुल भर गया है, ठीक है। उसके बाद में वो क्या करता है, वो जो मार्बल्स होते हैं, कंचे जो लोग खेलते हैं, वो लाता है और वो उसके अंदर डालना स्टार्ट करता है। वो लगभग 3-4 मुट्ठी वो पूरे उसके अंदर डाल देता है, और इतने डाल देता है कि अब उससे ज्यादा कंचे उसके अंदर नहीं आ सकते। एंड देन अगेन ही आस्क, भर गया है भाई लोग? सो बच्चे बोलते हैं कि हाँ सर अब भर गया है। फिर वो क्या करता है, रेत ले आता है, मिट्टी, और वो मिट्टी डालना स्टार्ट करता है उसके अंदर। तो वो कम से कम 2-3 मुट्ठी मिट्टी चली जाती है उसके अंदर फुल। और अब वो पूछता है कि ये भर गया है? तो बच्चे बोलते हैं कि हाँ अब तो पक्का भर गया है। तो वो 2 ग्लास पानी लाता है, वो 2 ग्लास पानी उसके अंदर डालता है, वो पानी भी उसके अंदर चला जाता है। फिर वो पूछता है, द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपका माइंड जो है वो उस जार की तरह है जहां पे आप चीजें भर सकते हो। लेकिन अगर आपने सीक्वेंस गलत कर दी, आप सोचो अगर ये टीचर उसके अंदर पहले लाके मिट्टी डाल देता तो वो क्या एक भी टेबल टेनिस बॉल डाल पाता? बिल्कुल भी नहीं। या एक भी मार्बल डाल पाता? नहीं डाल पाता। द प्रॉब्लम इज दैट आप अपनी फील्ड में जो चीज सीखना है वो सीखने की बजाय दूसरी कुछ ऐसी चीजें बहुत ज्यादा सीख ले रहे हो कि आप अपना इंपॉर्टेंस ऑफ लर्निंग भूल जा रहे हो। और ये सबसे ज्यादा, क्योंकि मैं टेस्टिंग फील्ड को जानता हूं अच्छे से, सबसे ज्यादा टेस्टिंग फील्ड में हो रहा है। लोग दुनिया भर की चीजें पढ़ ले रहे हैं, और जो वो टेनिस बॉल और वो मार्बल से वो बाहर कहीं पड़े हुए हैं, वो आपके जार में जा ही नहीं रहे हैं, क्योंकि आपने पूरा जार मिट्टी से भर दिया। सो माई पॉइंट इज every skill is important. You need to know what is that skill which you should acquire first, and then immediately what is the next first for you. क्योंकि the priority का concept ये है कि आप जैसे ही first priority पूरी करते हो, there is always one priority which become your first priority. So always treat first priority as your priority. Automatically सब चीजें solve हो जाएगी. Yeah? गॉट इट। तो जैसे अभी हमने एक्सपेरिमेंट्स की बात करी, दैट दिस फील्ड इज मच मोर ओपन टू एक्सपेरिमेंट्स, बट स्टिल देयर आर प्रोसेसेस रिक्वायर्ड, राइट? सो हाउ इम्पॉर्टेंट इज प्रोसेस इन दिस फील्ड? Process is very important for all the fields, I would say. टेस्टिंग के लिए भी important है टेस्टिंग। सो मैं आपको बताता हूँ, प्रोसेस का भी एक अपना ही कंट्रोवर्सी ये है कि एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस। एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लोग बोलते हैं, स्क्रम इज वन ऑफ द फ्रेमवर्क इन दैट प्रोसेस। तो उसमें ऐसा लिखा हुआ है, फर्स्ट वैल्यू ऑफ एजिलिटी इज individuals interaction over processes and tool. That means your interactions with individual is more important than processes and tool, but still Scrum is a process, and for that you have a Scrum master जो आपकी process को safeguard करेगा।
तो आप ही कह रहे हो कि प्रोसेस इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपने एक और बंदा बना दिया है जो आपके प्रोसेस का ध्यान रखता है। क्यों? क्योंकि प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। इट्स लाइक इंडिविजुअल इंटरेक्शंस आर मोर इंपॉर्टेंट देन प्रोसेस, बट प्रोसेस इज सिग्निफिकेंटली इंपॉर्टेंट। और लोगों को ये लगता है कि प्रोसेस, और ये एक वन ऑफ द एनालॉजी विच आई यूज्ड इन कॉन्फ्रेंस व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट, लोग कहते हैं कि प्रोसेस इज जैसे कार में ब्रेक होता है वैसा होता है प्रोसेस आपके लिए। एक्चुअली में वही होता है। पर अगर आप सोचो कि ब्रेक का काम क्या है, ब्रेक आपकी कार की स्पीड को कम नहीं करता। ब्रेक आपको कॉन्फिडेंस देता है कि आप कितनी भी स्पीड से चलाओ, जब जरूरत पड़ेगी हम उसको मैनेज कर लेंगे। दैट्स व्हाट द सिग्निफिकेंस ऑफ ब्रेक इन योर कार। आप प्रोसेस अगर आपकी टीम में है, एक संस्कृत का एक श्लोक है, पंचतंत्र में कहा जाता है, उसमें वो कहते हैं कि पथ्ये सति गदार्थस्य भेषज ग्रहणेन किम, पथ्ये असति गदार्थस्य भेषज ग्रहणेन किम। इसका मतलब है कि जो आदमी, नाउ दिस इज रिलेटेड टू प्रोसेस ओनली, I'll just come back one more step back and after that I'll explain the meaning of this श्लोक। कि आपके पास अगर, जैसे आप फिटनेस का बात करते हो, आप फिटनेस पे ध्यान दे रहे हो, तो अगर आप परहेज करोगे, अगर आप क्या नहीं खाना है पे ध्यान दोगे, क्या खाना है पे ध्यान दोगे, तो आपको दवाई लेने की जरूरत ही नहीं है। ये श्लोक बोलता है अगर पथ्य का पालन, पथ्य मतलब परहेज का पालन जो करता है, उसे दवाई की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो इतना बढ़िया से खा पी रहा है कि वो करेगा ही नहीं कभी तबीयत खराब, तो उसे दवाई की जरूरत नहीं है। ऑन अपोजिट साइड पथ्ये असति गदार्थस्य, जो परहेज का पालन नहीं कर रहा है, कुछ भी खा रहा है, खाते ही जा रहा है, अपने मन से रह रहा है, कोई परहेज नहीं, कभी भी उठना कभी भी सोना, कुछ भी, उससे भी दवाई की क्या जरूरत है? क्योंकि दवाई उसका कुछ नहीं कर सकती, उसकी तबीयत खराब ही होगी, राइट? सिमिलरली अगर आपके पास अच्छी प्रोसेस है, बढ़िया सी प्रोसेस है, तो आपको क्वालिटी मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, अपने आप मेंटेन हो जाएगी। और अगर आपके पास अच्छी प्रोसेस नहीं है, कुछ भी करे जा रहे हो, तो आपको क्वालिटी मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, वो नहीं होने वाली। एंड दैट्स व्हाई, एंड इट्स नॉट जस्ट संस्कृत श्लोक, इट्स TQM एक कॉन्सेप्ट है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। उसका जो कोर फिलोसॉफी है वो बोलता है द क्वालिटी ऑफ योर प्रोडक्ट इज जेन्युइनली डिटरमाइंड बाय द क्वालिटी ऑफ योर प्रोसेस। अगर आपकी प्रोसेस की क्वालिटी बेस्ट है तो आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी बेस्ट ही होगी। सो ऑलवेज अंडरस्टैंड, फॉर दोज हु आर हायरिंग, फॉर दोज हु want to have good team, for those who really want to advocate quality, process is the most important thing, because अच्छा बंदा खराब सिस्टम से मर जाता है, पर अगर सिस्टम अच्छा हो तो एक ठीक ठाक बंदा भी बहुत अच्छा बन जाता है। सो सिस्टम is your process, and your process has to be well defined and it has to be well executed, and that's what testing as a process is: well defined, well executed. Yeah, so that's process. Yeah, and it is applicable in every field. Every field, yes, every field. Yeah. So now let's know the step by step process कि कैसे start करना है and कैसे इस field में enter करना है, then how to grow, because like 12 years experience is like really good. You could be someone who can guide us really well. तो आप हमें एक road map बता दीजिए, how to start, क्या पढ़ना है priority wise, and then कैसे इस field में आना है। वो वन साइड फिट्स ऑल का कोई सोल्यूशन है नहीं कि सबको बता दिया जाए कि कैसे होगा। पर हाँ, मैं एक चीज आपको बताता हूँ, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एक फील्ड ऐसी है, अगेन आप ना इस पॉडकास्ट में ही लिख देना कि दी ओपिनियंस आर ओनली, वो लिखते हैं ना कि ये मेरे खुद के हैं, ठीक है। मैं जो बोल रहा हूँ वो किसी डिस्क्लेमर, हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे कुछ पॉडकास्ट पहले भी हुए हैं जिसमें बहुत लोग अप्रिशिएट करते हैं द वे आई टॉक, या फिर जो चीजें मैं बता रहा हूँ रिलेटेबल हो जाती है। तो पर कुछ ऐसे भी सामाजिक तत्व हैं जो मुझे घेरे में लेके पर बात करते हैं। आई डोंट केयर ऑफ दीज थिंग्स, बिकॉज दिस इज व्हाट आई बिलीव कि आपको 2-4 लोग जब तक पॉइंट आउट नहीं करेंगे तब तक आप समझोगे भी नहीं। कहीं कहीं ऑफकोर्स थोड़ा कम ज्यादा बोलने से, लेकिन ये है कि अगर आपका स्टैंड क्लियर है तो आप अपनी बात को हमेशा स्टैंडर्ड रखते हो, दैट्स व्हाट आई डू। तो मैं जो बोल रहा था, ये मेरा मानना है कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग फील्ड
सबके लिए ओपन है और लोगों ने ये करके दिखाया है। व्हेन आई से सबके लिए, इट्स नॉट कि आपको इंजीनियर ही होना ज़रूरी है। MSc के लोग, BCA के लोग, कुछ लोग दिल्ली में UPSC प्रिपेयर करने आते हैं, 2-3 साल करते नहीं हो पाता तो फिर टेस्टिंग में आ जाते हैं। मैंने कई लोगों को ऐसे पढ़ाया है ऑनेस्टली, और उनको टेस्टिंग में किया। तो लोगों को ये समझना होगा कि पत्थर पहले खुद को पत्थर करता है, फिर जाकर कुछ कारीगर करता है। अगर आप अपने आप को बिल्डअप नहीं करोगे तो कोई कोर्स, कोई स्किल, कोई पॉडकास्ट, कोई यूट्यूब चैनल आपको हेल्प नहीं कर सकता। और जो स्किल्स आपको सीखनी है, आप हमेशा टारगेट सेट करो। when you are learning, what is important is to produce results. When you are preparing for गिटार बजाते आना चाहिए। when you are learning football, कोई स्किल, तो आप 3-4 दिन उसकी प्रैक्टिस करो, मेहनत करो, वो स्किल आ जाएगी, डेवलप करो एंड ऑल। सिमिलरली टेस्टिंग में या किसी और फील्ड में भी लर्निंग का यही है। एंड एवरीवेयर, इन नॉट ओनली इन लर्निंग, एवरी सिंगल थिंग इन द वर्ल्ड एंड एवरी सिंगल पर्सन इन द वर्ल्ड हु इज प्रोड्यूसिंग रिजल्ट, उसका फॉर्मूला सेम है। आपको सिर्फ कॉन्टेक्स्ट समझना है कि आपके लिए वो कहां और कैसे एप्लीकेबल होगा। द फॉर्मूला इज सिस्टम प्लस अकाउंटेबिलिटी प्लस मोटिवेशन इज इक्वल टू रिजल्ट। सिंपल। नाउ व्हाट इज सिस्टम फॉर लर्निंग? नाउ मैं स्किल सेट की बात कर रहा हूं। सिस्टम इज जहां आपको ये पता चले कि मुझे ये चीज यहां से सीखने को मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब चैनल या यूडेमी का कोर्स। You have a system जहां पे you have all the information as per your understanding that this is best if I learn this. This is going to help me to produce my result. That's your system. Identify your system. And it's not easy. हजारों यूट्यूबर हैं जो टेस्टिंग पढ़ा रहे हैं। हर कोई खड़ा होकर बोल देता है टेस्टिंग ऐसे वैसे, राइट? तो ये जो वेब पोल्यूशन है, वेब पे सब कुछ बहुत ज्यादा है, पोल्यूटेड भी हो गया है। So to understand what will serve as your system is first thing, system. Second is accountability. So you should have somebody who is accountable for your actions that you are taking is done or not. So you should have coach, you should have mentor, you should have accountability partner, you should have a peer who is learning with you. इन लोगों को यू शुड हैव इट। आप अकेले कोर्स बुक मार्क करके, वीडियो देख के नहीं सीख सकते। पहली चीज तो पढ़ना इतना इंपॉर्टेंट है, लोग पढ़ना ही भूल गए। पढ़ने के नाम पे एक LCD की स्क्रीन है जिसको देख के आप सब कुछ किए जा रहे हैं, वो पढ़ना है ही नहीं। इट्स नॉट स्टडिंग, इट्स लर्निंग, एंड देयर इज डिफरेंस बिटवीन स्टडिंग एंड लर्निंग। किताबें होनी चाहिए और आज भी लिखी जा रही है, बेहतरीन लिखी जा रही है। तो आप पढ़ोगे नहीं तब तक आप वो नहीं सीखोगे जो लोग नहीं सीख पा रहे हैं। वही सीखोगे जो सबको आ रहा है, और फिर बोलोगे अरे यार मेरी तो सैलरी है और उससे ज्यादा नहीं हो, मैं कंपेयर ही करता रह जाऊंगा और अपॉर्चुनिटीज नहीं बन रही एंड ऑल। तो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। यू शुड हैव अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। व्हेन आई से अकाउंटेबिलिटी इज अ शेयर्ड जर्नी, डिवाइडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन टू पीपल, वन हु इज डूइंग एंड सेकेंड इज हु इज सुपरवाइजिंग, हेल्पिंग, अंडरस्टैंडिंग। इस तरीके, मतलब हर क्रिकेट टीम में, हर फुटबॉल टीम में, हर एनी स्पोर्ट्स, यू हैव अ कैप्टन। कैप्टन का कोर काम, जैसे रोहित शर्मा का कोर काम बैटिंग ही है, लेकिन वो एज ए कैप्टन क्या करता है, बाकी 10 प्लेयर की अकाउंटेबिलिटी का पार्टनर है। सो सिस्टम, अकाउंटेबिलिटी, एंड थर्ड इज मोटिवेशन। मोटिवेशन दैट कम्स विद इन, अंदर से आ रही है वो मोटिवेशन। किसी के भाषण सुन के या पॉडकास्ट सुन के किसी का, और आपने बोला कि नहीं अब तो मैं करूंगा, तो वो 2 दिन तक ही चलेगा। फिर एक दिन आएगा गैप कि जाना है भाई, नोएडा में रहते हो, दिल्ली से सामान ले आओ, दोपहर का टाइम चला गया, अगले दिन से आपका मोटिवेशन खत्म। क्यों? क्योंकि वो सीक्वेंसिंग चली गई। सो मोटिवेशन इंटरनली आएगा। तो जब आपका सिस्टम सही होगा, जब आपका अकाउंटेबिलिटी डिसाइडेड होगा, जब आपका मोटिवेशन स्पेसिफिक होगा, तो आपका रिजल्ट 100% आना है। यही सबका फॉर्मूला है। और दूसरी चीज, हर चीज को मत सुनिए, क्योंकि जो लोग बता, ओके लेट मी आस्क यू, आपके हिसाब से हु इज द बेस्ट क्रिकेटर इन द वर्ल्ड? कोहली। कोहली, राइट?
kind of a bias is there, but yes, Virat Kohli. विराट कोहली, नो नो, आई मीन ही इज एक्चुअली बेस्ट. और अगर सेकंड समझो टॉप 3 आप बताइए वर्ल्ड लेवल पे देख के, सोच के थोड़ा सा. और भी मैं ये एनालिसिस की बात नहीं कर रहा हूँ, फेवरेट क्रिकेटर लेट्स से, नॉट द बेस्ट. तो विराट कोहली इज डेफिनेटली फेवरेट, राइट. 2 और हाँ, मेरे को लगता है ब्रेटली. ब्रेटली, आई लाइक हिम. ओके. एंड धोनी. धोनी. तो सी द कॉम्बिनेशन इफ यू सी, एंड दैट्स एग्जैक्टली, आपको ये कॉम्बिनेशन हर फील्ड में पता होना चाहिए. व्हाट यू सिलेक्टेड, आई डोंट नो विथ व्हाट अंडरस्टैंडिंग, बट यू सिलेक्टेड 1 बैट्समैन कोर, 1 बॉलर कोर, Yes. एंड 1 ऑलराउंडर कोर. दैट्स व्हाट यू सिलेक्टेड. Yes. ठीक है. Yes. ये अगर लोग, मतलब कैसे हम इनको बताएंगे कि इट वॉज नॉट प्लान्ड दिस सिलेक्शन ऑफ प्लेयर एंड ऑल, बट दिस एग्जैक्टली व्हाट आई वाज. The question itself is impromptu. या बट दैट्स व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग एज एन आंसर, कि आप Yeah. इस तरीके के सिलेक्शंस करो. तो ऐसे ही दोस्तों, जब फील्ड भी सिलेक्ट होती है ना इंडस्ट्री की, तो डेवलपर एक, टेस्टर एक, डेवऑप्स, प्रोडक्ट ओनर, ये सब एक होते हैं. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इन तीनों की वैल्यू है. somebody who know cricket, somebody who understand, he'll always select these kind of thing. रोहित, बुमराह, हार्दिक, ये मुंबई इंडियन का कॉम्बिनेशन था पहले, बढ़िया टीम थी, राइट. सो रोहित इज बैट्समैन, बुमराह इज बॉलर, हार्दिक इज यू नो ऑलराउंडर. आपकी टीम जो आप बना रहे हो उसमें भी सेम कॉम्बिनेशन है. तो अच्छी टीमों का सिलेक्शन ये नहीं होता कि टॉप 3 प्लेयर आपने बता दिए, रिकी पॉन्टिंग, MS धोनी और रोहित शर्मा, सब बैट्समैन ही गिने जा रहे हो, तो गलत हो जाओगे. इसलिए आपको पढ़ते टाइम भी स्किल सेट भी ऐसे ही आइडेंटिफाई करने हैं कि मुझे एक कोर टेस्टिंग का पढ़ना है, एक DSA या AI पढ़ना है, या एक दूसरा. इस तरीके से आपको डिफाइन करना चाहिए अपनी स्किल्स. क्या ओके, सो अभी जैसे कि हमने स्किल्स एंड ऑल के का डिस्कशन थ्रू आउट द पॉडकास्ट किया है, बीच बीच में कहीं ना कहीं टेक्निकल स्किल्स का हमने डिस्कशन किया है. सो नाउ लेट्स नो कि सीखने के लिए, क्योंकि यू सेड दैट वेब इज एक्चुअली पोल्यूटेड, तो राइट रिसोर्सेज कहाँ से ढूंढने हैं, एंड व्हाट आर दी बेस्ट रिसोर्सेज दैट आर अवेलेबल इन द ऑन द वेब, आई वुड से, टू लर्न टेस्टिंग. So the best resource with my understanding is the test chat community. And क्योंकि हम उस community को बहुत अच्छे से जानते हैं. We have made this community with so much of intention that हमारा जो sole purpose है वो है प्लेटफॉर्म देना, क्योंकि हम ये जानते हैं कि लोगों को आता है बहुत कुछ और लोग जानना चाहते हैं बहुत कुछ. इन दोनों का कॉम्बिनेशन, जैसे ओला ने क्या किया, एक ड्राइवर है जिसको राइड चाहिए, एक बंदा है जिसको गाड़ी चाहिए, उनको कहीं जाना है ना, तो उनको बस उनको मैच करा दो, आप एक प्लेटफॉर्म बना सकते हो. जैसे Naukri.com, एक आदमी जिसे जॉब चाहिए, कंपनी जिससे कैंडिडेट चाहिए, Naukri.com, राइट. तो इन लोगों ने ये फैसिलिटीज प्रोवाइड की. इनमें सिर्फ एक चीज एडिशनल है हमसे, विच इज नॉट एडिशनल इन माई ओपिनियन, वो पैसा कमाते हैं, हम इस चीज का पैसा नहीं कमाते. इट्स अ फ्री यूनिवर्सिटी जहाँ पे यू कैन लर्न एनीथिंग एंड एवरीथिंग प्रोवाइडेड यू नो व्हाट यू वांट टू लर्न. सो द टेस्ट चैट कम्युनिटी इज चैट GPT फॉर somebody who नो कि उसे क्या प्रॉम्प्ट करना है टू गेट करेक्ट आंसर. सो ये तो एक वन स्टॉप सोल्यूशन है ही फॉर फ्री लर्निंग एंड फॉर लर्निंग एवरीथिंग अबाउट टेस्टिंग, बिकॉज लोगों से मिलके समाज बनता है. ऐसे ही इन लोगों से मिलके हमने एक कम्युनिटी बनाई है जिसमें यू विल गेट अ पर्सन हु हैव 50 years ऑफ एक्सपीरियंस इन टेस्टिंग, एंड ऑल्सो अ गाय हु हैज जस्ट ज्वाइन दिस कम्युनिटी, ही इज इवन नॉट अ टेस्टर अभी, तो वो वहाँ से सीख रहा है, समझ रहा है एंड ऑल. सो ये एक प्लेस, ऐसी बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं. द टेस्ट ट्राइब एक कम्युनिटी है, बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत सारे मीटअप, बहुत सारी लर्निंग, उनके कोर्स बहुत अच्छे हैं. दे हैव वन फाइन सर्कल करके एक प्रोडक्ट है जहाँ पे दे आर डूइंग एवरीथिंग गुड. इफ़ यू वांट टू लर्न, इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड, इफ़ यू वांट टू ग्रो, इफ़ यू वांट टू नो क्या क्या हो रहा है, इवन इफ़ यू वांट टू शो कि आपको क्या आता है, ऑल दीज थिंग्स इज अवेलेबल देयर, तो आप वो कर सकते हो. यूट्यूबर्स बहुत सारे हैं और इसलिए मैं सबको रिकमेंड नहीं कर सकता. मेरे कुछ फेवरेट हैं जो नॉट फेवरेट, मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे हैं मेरे थ्रू आउट माई जर्नी, इज़ नवीन कुंटेटा, मुकेश ओटवानी, देयर इज़ फंडू टेस्टर, एक बहुत अच्छी कम्युनिटी मुझे लगती है. वो लोग बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें पर बहुत ऐसे वे में कि आप बहुत अच्छे से सीख सकते हो.
संजय कुमार है एक जिन्होंने फ्री टूल्स बनाए हैं एंड ही इज कंटिन्यूसली बिल्डिंग अप थिंग्स विच आर हेल्पफुल फॉर टेस्टर, तो दैट ही इज डूइंग, वो बहुत अच्छे हैं. देर आर लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसर ऑन लिंक्डइन जिनको आप फॉलो कर सकते हो, दे आर राइटिंग वेरी गुड अबाउट टेस्टिंग. AI के बारे में बहुत अच्छा चल रहा है टेस्टिंग में, एंड यू कैन लर्न by paid course, by free courses, and all of them are available. You can find it from LinkedIn या फिर in communities में if you'll join, so you will come to know that there are meetups happening, there are free sessions happening, and from there you can get idea कि कौन कौन से कोर्स अच्छे हैं करने चाहिए. All in all, बहुत सारी चीज़ें फ्री में अवेलेबल है, तो मैं चाहता हूँ कि आप, बट जैसे मैंने बोला, अकाउंटेबिलिटी कहाँ से लाओगे? अगर फ्री में सिस्टम मिल गया, मोटिवेशन मिल गया, पर अकाउंटेबिलिटी नहीं ले तो फिर से रिजल्ट नहीं आएगा, राइट? अगर आपके पास अकाउंटेबिलिटी है, मोटिवेशन भी है, पर अच्छा सिस्टम नहीं है, फिर से रिजल्ट नहीं आएगा. और अगर आपने पैसे खर्चा करके यूडेमी कोर्स ले लिया और अपने मम्मी को बोल दिया कि नहीं पढ़ूंगा तो मुझे रोज मारना, तो सिस्टम भी है, अकाउंटेबिलिटी है, पर मोटिवेशन नहीं आएगा, कम्युनिटी में नहीं मिलोगे, तो कैसे हो पाएगा? सो एक चीज अगर नहीं है SAM में से, तो आपका रिजल्ट खराब है. खैर, द पॉइंट इज यू शुड हैव ऑल दीज थिंग्स, और इसीलिए फ्री तब जाओ जब आपके पास ऑलरेडी अकाउंटेबिलिटी और मोटिवेशन का सोर्स है. अगर नहीं है, पे फॉर योर लर्निंग्स. पे is meaning of investment. Invest in good learning resources, because from where you are learning plays significantly important role in what you will produce as a result. So जो लोग के भी नाम मैंने लिए, ये फ्री में भी अवेलेबल है, पर ये पेड भी ट्रेनिंग देते हैं. और ये सारी अपार्ट फ्रॉम द टेस्ट चैट, एवरीथिंग इज पेड एज वेल. एंड यू नो, यू शुड ऑलवेज हैव दैट सेंस कि मुझे ये पैसे दे के सीखना है. उससे आपका इंटरेस्ट बढ़ता है, प्लस अगले का भी इंटरेस्ट आता है कि वो आपको बढ़िया से सिखा सके. सो आई एम अगेन नॉट प्रमोटिंग दैट यू शुड पे फॉर एनी रैंडम कोर्सेज, बट डेफिनेटली हैव दैट इन माइंड दैट यू हैव टू पे एज एन इन्वेस्टमेंट टू योर स्टडीज, एंड दोज आर अवेलेबल. थोड़ा अच्छा रिसर्च करिए, और अच्छे आदमी के पास, अच्छे ट्यूटर के पास, अच्छे कोच, ट्रेनर, मेंटर के पास पैसे दो, टाइम दो, एफर्ट दो, एंड द रिजल्ट्स आर डेफिनेटली ग्रेट. पीपल आर डूइंग इट एंड यू कैन ऑल्सो डू दैट. तो अभी थोड़ा ना इंटरव्यू प्रोसेस जानते हैं कि एज एन इंटरव्यूअर क्या माइंडसेट होता है व्हेन द प्रोफाइल इज ऑफ अ सॉफ्टवेयर टेस्ट इंजीनियर, या एज एन इंटरव्यूई किस तरीके के प्रोसेस को फॉलो करना होता है फॉर गेटिंग शॉर्टलिस्टेड इन एनी इंटरव्यू. मेरे हिसाब से व्हाट यू शुड फोकस मोर ऑन इज what are the things that can be asked and how I'll answer it. ठीक है? So this is important. और तीसरा जो इंटरव्यू ले रहा है, विद इन द इंटरव्यू, भाई अनु मलिक को देख के मत आओ. किसी को बोल रहा तू सिलेक्टर मुंबई आ सकता है, तुम जज नहीं हो. You see yourself as a coach, and in that you always understand that you have some requirement of skills. This person has some skills. If that gap is bridgeable and you can do that, तो उसको हायर कर लो. 100% मैच नहीं मिलेगा, ठीक है? ढूंढना भी नहीं है. अगर मिल गया तो वो 30 मिनट में ब्लफ कर रहा है आपके साथ. एग्जैक्टली मैच नहीं मिलता. आप ये सोचो कि इस बंदे को 3 दिन पहले जेडी मिल गई थी, वो 3 दिन में 40-50 घंटे लग के तैयारी करके 30 मिनट में आपको इजीली ब्लफ कर सकता है, अगर वो बहुत स्मार्ट है तो. सो इसीलिए आप ये सोचो कि कौन सा बंदा, उसकी स्किल्स वर्सेस ट्रेड्स वाला कॉम्बिनेशन. जो आपकी स्किल्स है वो आप कभी भी एक्वायर कर सकते हो, सीख सकते हो, पढ़ सकते हो, ट्रेंड हो सकते हो. आपकी जो ट्रेड्स है, आपका जो साइकोलॉजी है, आपका जो अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स थिंग्स है, वो कितना अच्छा है, उसको आपको इवैल्यूएट करना है. जज नहीं करना है, इवैल्यूएट करना है थ्रू असेसमेंट, एंड सी इफ दैट गैप इज ब्रिजेबल, हायर देम, गिव देम अपॉर्चुनिटी, एंड दे विल बी ग्रेटेस्ट एसेट थ्रू आउट योर करियर. कि मैंने एक बंदे पे चांस लिया था with these 5-6 things only. He was not having 10, but then he is a great person I have in my team. So we need to understand that there are these 3 system. One is who is creating JD, one is who is taking an interview, and somebody who is giving interview. If all of these people, they understand that they are making difference by adding value to everything that they are doing, उस बेसिस पे आपके इंटरव्यू प्रोसेस अच्छे हो जाएंगे, एंड दैट्स वाई आपका कैंडिडेट अच्छा होगा, रिजल्ट अच्छे आएंगे, एंड ओवरऑल आपका जो पर्पस था ऑफ कंडक्टिंग दिस इंटरव्यू, तब जाके आपका सॉल्व हो पाएगा.
Now since we are reaching towards the end of the podcast और अभी तक मैंने ये नहीं पूछा कि आप एडिडास में क्या काम करते हो. I want to know that exactly what do you do. एडिडास में सी ओवरऑल तो मतलब स्टेप बाय स्टेप तो नहीं बता सकते हैं पूरा, बट एडिडास में हम वही काम करते हैं जो बाकी नॉर्मल टेस्टर्स करते हैं. एडिडास में वर्क कल्चर बहुत अच्छा है. सो इवन दो वी ऑल्सो राइट टेस्ट केस, वी ऑल्सो राइट स्क्रिप्ट, वी ऑल्सो एग्जीक्यूट देम, वी ऑल्सो हैव सैनिटी स्वीट. हमारे पास भी पोस्ट डिप्लॉयमेंट टेस्ट सेट है जो रन होता है. हमारे पास भी जेनकिंस है. वी ऑल्सो यूज बिटबकेट. एवरीथिंग इज सेम जो आप देख रहे हो. इट्स जस्ट दैट वी हैव from other companies that I have worked for, we have a different motivation to work towards achieving the target by smart work. We actually do not do lot of work कि नहीं दिन रात लगे पड़े बस पूरी मेहनत कर रहे हैं और 700-800 टेस्ट केस लिख रहे हैं. We do not work like that. We work on understanding that what is really important. That principle of do, delegate, decide and delete, these 4 Ds. If it is important and it is urgent, do it. If it is important but not urgent, delegate. If it is not important and not urgent, delete. If it is important but not urgent, decide whether you should do it or not. That's exactly how Adidas works. We use all the advanced technologies that are there. We also try to implement नए tools जैसे Playwright का use हो रहा है. And there are different teams in Adidas. Front end ऐप को संभालने वाली, कोई सप्लाई चेन देख रहे हैं, कोई आपके बिजनेस के डिजिटलाइजेशन पे काम कर रहे हैं. सो एवरीबडी इज, वी डू नॉट हैव लाइक आई सेड वन साइज फिट्स ऑल सोल्यूशन नहीं है. सबका अपना रिक्वायरमेंट ऑफ टूल, टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग है. एंड एडिडास बिलीव्स इन प्रोवाइडिंग दैट सो दैट दे कैन empower their resources, they can enable their resources to produce good effort, and that's why this company can lead and achieve the vision and mission that they have. Awesome. So any advice now that we are at the end of the podcast, the last question there, any advice to people who are preparing to come into this domain? Advice मतलब सब एडवाइस ही है. बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं और लगता है कि यार ये लोगों को बताना चाहिए. और एडवाइस मैं कुछ बना के नहीं दे रहा हूँ या दूंगा. बहुत सारे लोग पुराने हमारे लिटरेचर में बहुत सारे लोग एडवाइस दे के गए हैं और जो आज भी उतनी ही कामयाब और उतनी ही रेलेवेंट है कि आपको वो चीज़ों को मानना चाहिए, वो चीज़ों को समझना चाहिए. सो मे बी 2-3 चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ जो मुझे लगता है कि लोग ध्यान दें तो उनके लिए अच्छा होगा. एक राहत इंदौरी साहब, उनका एक बहुत बढ़िया शेर है. वो कहते हैं कि ना किसी हम सफ़र ना हम नशी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा. तो टेस्टर्स दे नीड टू अंडरस्टैंड कि कोई और आके आपकी इंडस्ट्री को, कोई और आके आपके स्किल्स को, आपके जॉब को अच्छा नहीं बोलेगा या ये नहीं बताएगा कि ये बहुत महान लोग हैं. You have to understand that this is what is important in your career, in your life, in throughout the journey that you are doing as a professional. और जितनी भी प्रॉब्लम्स है, जितने भी सिचुएशंस है, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स है, ले ऑफ्स आ रही हैं या फिर स्किल सेट का गैप हो जा रहा है या फिर समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए, यू हैव टू स्टॉप, ब्रीथ, इवैल्यूएट, अंडरस्टैंड. खुद ही सोल्यूशन लेना पड़ेगा. आप किसी और के बताए रास्ते पे अगर चलोगे तो, एंड इफ ही इज नॉट लाइक, लोग ना हेयर कट की दुकान पे बोलते हैं यार टेस्टिंग सही नहीं लग रहा मुझे प्रोफेशन, और वहाँ डिसाइड करते हैं कि टेस्टिंग छोड़ देना है, डेवऑप्स में जाना है. तो आप कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है. अगर आप जानते हो कि आप किस जगह पर किस बंदे से क्या बात कर रहे हो तो आप अच्छा डिसीजन ले सकते हो. अदरवाइज आप प्रॉब्लम में ही रहोगे. और इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप राज साहब की वो बात हमेशा याद रखो कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर इम्प्रूवमेंट एंड हेंस यू आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग विच इज नॉट गोइंग राइट विथ यू. सो ऑलवेज टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट ओनस, एंड देन ओनली यू विल एटलीस्ट आप किसी को ब्लेम तो नहीं कर पाओगे तब, ठीक है. और वो एक बहुत अच्छी चीज़ है टू अचीव. सो दैट आई थिंक दिस इज वन. सेकेंड एडवाइस, अगेन एक रहीम दास जी का एक दोहा है. वो मैंने लास्ट टाइम एक कॉन्फ्रेंस में आई स्पोक अबाउट दिस और लोगों को काफ़ी अच्छा लगा था. मैं ये जो एडवाइजेस मैं काफ़ी बार दे चुका हूँ पर मैं इसलिए एम्फेसाइज करता हूँ क्योंकि ये एक्चुअली में इंपॉर्टेंट है.
रहीमदास जी कहते हैं कि रहीमन देखे बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहां काम आए सुई कहाँ करे तलवारी। आप इतना ज़्यादा मत एडवांस बन जाओ कि मैं डीएसए कोर बिल्कुल पढ़ लूँगा, मैं एआई का सब कुछ समझ लूँगा, और इन सब के चक्कर में इतनी फास्ट ट्रेन में चढ़ा हूँ कि मैं अपना मेन सामान प्लेटफॉर्म पे ही भूल चुका हूँ। मैं टेस्टिंग, स्किल सेट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन, ये सब इतना भूल चुका हूँ लोगों के साथ कि मैं सिस्टम पे सिर्फ आईडी के साथ बात करता हूँ और कंपाइलर जब मेरे नाम की तालियां बजाता है तो मुझे लगता है कि मैं सक्सेसफुल हूँ। ऐसा नहीं है। तो जहाँ काम आए सुई वहाँ तलवार कभी काम नहीं आ सकती। ऑलवेज थिंक दैट योर जॉब इज नॉट टू हंट बग्स, योर जॉब इज टू आइडेंटिफाई व्हाट कैन बी, सुई से कितना काम हो सकता है और ये सही दिखाया जा सकता है। ठीक है, तो टेस्टर का जो डिस्ट्रक्टिव माइंडसेट है, नेगेटिव सोचते हैं टेस्टर, लोग बोलते हैं नेगेटिव सोचते नहीं है, पॉजिटिव हो जाए इसलिए नेगेटिव को हाईलाइट करता है ना। हम सफाई पे ध्यान देते हैं, कचरे पे नहीं। और आप जब सफाई पे ध्यान दोगे तो अपने आप कचरा साफ होगा। अगर आप कचरे पे ध्यान दोगे ना, ये लोग होते हैं ना जो कचरे पे ध्यान देते फिर उसको सोफे के नीचे डाल देते हैं, कचरा दिख रहा है बेड के नीचे डाल दिया, कचरा दिख रहा है कबर्ड के नीचे डाल दिया, फिर जब दिवाली की सफाई में सोफा उठता है तो पता चलता है कि हमने जो टेस्टर होता है वो हमेशा सफाई पे ध्यान देता है, सिस्टम की क्वालिटी की बात कर रहा हूँ मैं। सो दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज तलवार एंड व्हाट इज सुई एंड हैव बोथ ऑफ दिस। माई पॉइंट इज डेफिनेटली अंडरस्टैंड ऐसे लर्न करो क्योंकि वो पूछा जा रहा है। AI इज मैंडेटरी टू हैव क्योंकि इंडस्ट्री बदल रही है, बट द पॉइंट इज उस चक्कर में आप सुई को मत भूल जाओ क्योंकि वो हमेशा आपका कोर वेपन या कोर स्किल सेट आपका सुई ही है जो आपको आगे ले जाता है। दैट इज वन थिंग विच पीपल नीड टू अंडरस्टैंड। बहुत मज़ा आया पॉडकास्ट में। थ्रू टेस्टिंग हमें लाइफ के काफ़ी सारे पर्सपेक्टिव्स पता चले एंड ऑफ कोर्स टेस्टिंग के बारे में तो बहुत डिटेल में पता ही चला। सो आई होप गाइस पॉडकास्ट आपके लिए भी बहुत हेल्पफुल होगी। सचिन का लिंक्डइन और टॉपमेट का भी दे दूंगी मैं, और आप टेक्स्ट चैट का भी लिंक, मैं सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। सो डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट। आप बिल्कुल सचिन से कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन माई चैनल एंड इतनी सारी कॉन्वर्जेशन के लिए, इतनी सारी बातें बताने के लिए एंड इन अ वेरी नाइस वे। मतलब मेरे को एक सेकंड भी ऐसा नहीं लगा कि मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई हूँ या मैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चली गई हूँ, मेरे को एक सेकंड भी ऐसा नहीं लगा। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस अमेजिंग पॉडकास्ट। थैंक यू फॉर हैविंग मी। आई थिंक यू आर डूइंग ग्रेट जॉब ऑलरेडी। मैंने आपके बाकी एपिसोड्स भी देखे हैं। Even if doing same job but in different style is what this world need, and podcast बहुत सारे लोग कर रहे हैं, but the way you are figuring out things that these are important, not only testing but आप data पे बात कर रहे हो, आप DSA पे बात कर रहे हो, so all these things are important as a society to deliver, and you are doing great job. So thank you for having me. I know that we were planning this quite long, पर अब हो गया तो मुझे भी अच्छा लग रहा है। Yes. Yeah. Great. Thanks again. Guys, अगर पॉडकास्ट अच्छी लगी so don't forget to hit that like button, share it to your friends and family and subscribe to my channel and don't forget to hit the bell notification so that you get notified जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो।